محمد علی ستپارہ کون تھا؟ وہ پہاڑوں کا ریسکیو مین تھا۔ محمد علی ستپارہ کو K2 کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نذیر صابر، مشہور پاکستانی کوہ پیما۔ غیر ملکی کوہ پیما الیاس سکلے نے محمد علی ستپارہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا، Ali is one of Pakistan's greatest hero and his pioneering accomplishment in throne room of heavens will always be remembered۔ علی پاکستان کے عظیم ترین ہیرو تھے۔ ان کی آسمانی عرش پر کامیابیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ یاد رہے K2 کو اپنی اونچائی کی وجہ سے تھرون روم آف ہیون کہا جاتا ہے، یعنی عرش کا وہ کمرہ جہاں داخل ہونا آسان تو نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور کوہ پیماؤں کے سب سے مشہور میگزین الپائنسٹ محمد علی ستپارہ کو ان سنہری لفظوں کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 2016 میں ستپارہ نے ہزاروں سالوں کی انسانی تاریخ میں پہلی بار قاتلوں کے قاتل پہاڑ نانگا پربت کو منجمد سردیوں میں سخت موسم میں سر کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد علی ستپارہ کے پاس اپنا کوئی کوہ پیمائی کا تکنیکی سوٹ تک نہیں تھا۔ ایک غیر ملکی کوہ پیما نے انہیں اپنا سوٹ ادھار دیا اور اس ادھارے سوٹ کے ساتھ محمد علی ستپارہ نے پاکستان کا پرچم نانگا پربت پر لہرا کر اعزاز حاصل کیا۔ ڈان نیوز کے مطابق محمد علی ستپارہ نے دنیا کی 14 پہلی بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں۔ ان کے جوتے تک معیاری نہیں تھے۔ وہ لنڈے کے بازار سے جوتے اور کوہ پیمائی کا سامان خریدتے اور انہیں خود تیار کرتے تھے۔ ناظرین، محمد علی ستپارہ کون تھے؟ ان کا بچپن کہاں گزرا؟ کوہ پیمائی کی دنیا میں ان کی کتنی عزت تھی؟ اور K2 دنیا کا خطرناک ترین قاتل پہاڑ کیوں کہلاتا ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد علی آوان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ویورز، محمد علی ستپارہ بنیادی طور پر ایک کوہ پیما پورٹر تھے، مگر ان کا خواب بڑے بڑے پہاڑ سر کر کے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر سبز ہلالی پرچم ہلا کر اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا تھا۔ محمد علی ستپارہ 1976 میں بلتستان کے ایک گاؤں ستپارہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں کے 2 پیشے تھے، اول مویشی پالنا اور دوم غیر ملکی کوہ پیماؤں کے ساتھ پورٹر کی سیزنل مزدوری کرنا۔ پورٹر دراصل وہ آدمی ہوتا ہے جب ایک کوہ پیما پہاڑوں کو سر کرنے کے مشن پر چلتا ہے تو پورٹر اس کوہ پیما کا سامان اٹھا کر اور راستہ گائیڈ کر کے کوہ پیما کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ محمد علی ستپارہ کے والد بھی بطور پورٹر کام کرتے تھے۔ ایک پورٹر دشوار پہاڑوں پر 25 کلو تک کا سامان اٹھا کر کئی کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرتا ہے۔ ویورز، محمد علی ستپارہ کی کہانی کا پس منظر پیش کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے پاکستان میں کوہ پیمائی کی تاریخ اور یہاں کے مشہور پہاڑوں کے نام اور پاکستانی بہادر پورٹروں کی فہرست پیش کریں گے۔ کوہ پیمائی دنیا کا سب سے خطرناک ترین جان لیوا ایڈونچر ہے۔ کوہ پیمائی کا ایڈونچر 1880 میں برطانوی نوجوانوں نے شروع کیا تھا۔ ایک برطانوی کوہ پیما WUP ہاسکٹ سمتھ کو فادر آف کلائمبنگ کہا جاتا ہے۔ کوہ پیمائی کے لیے سب سے بنیادی چیز اونچے پہاڑوں کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ جو 7 جنوبی ایشیائی ممالک تک پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کا سب سے بلند ترین اور طویل پہاڑی سلسلہ ہے، جو کوہ پیمائی کے ایڈونچرز کے لیے بہت موزوں جانا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں دنیا کے پہلے بلند ترین 14 پہاڑ اور ہزاروں چھوٹے پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ دنیا کے پہلے 14 بلند ترین پہاڑ ہمالیہ ریجن میں واقع ہیں۔
जिनमें से 5 पहाड़ पाकिस्तान के हिमालयी और कोहे हिंदू कश रीजन में आते हैं। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा और दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ केटू 8,611 मीटर ऊंचा है। इसके बाद नांगा पर्वत 8,126 मीटर, ग्लेशियर ब्राह्म 8,080 मीटर, ब्रॉड पैक 8,051 मीटर और ग्लेशियर ब्राह्म 2 8,035 मीटर के साथ बुलंद तरीन है। हिमालय के बुलंद तरीन बाकी 9 पहाड़ नेपाली खित्ते में मौजूद हैं। मोहम्मद अली सतपारा ने इन 5 में से पहले 4 पहाड़ सर कर दिए थे। केटू वो आखिरी पहाड़ था जिसे वो सर करने की मुहिम पर गए और हमेशा के लिए वहां खोकर अमर हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोहे पैमाई की तारीख क़याम पाकिस्तान से ही शुरू हो जाती है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू पर पहली बार 1953 में अमरीकी कोहे पैमाओं का एक मिशन आया जिसकी सरबराही जॉर्ज बेल कर रहे थे। ताहम उन्होंने इस मिशन में अपना एक साथी खो दिया और वो ये कहते हुए नाकाम लौटे कि ये कातिल पहाड़ है, आपको मौत के मुंह तक ले जाता है। ताहम अगले ही साल इटली के 2 बहादुर मुहिम जो लीनो लास्डेली और एचली कंपाग्यूनी ने पहली बार लाखों साल की इंसानी तारीख में केटू की चोटी सर की और केटू का ये गरूर तोड़ दिया कि इस चोटी पर कभी इंसानी कदम नहीं पहुंच पाए थे। अब तक केटू को सर करने के लिए हजारों मुहिम जो कोहे पैमा आए, मगर सिर्फ 367 कोहे पैमा ही केटू सर करने का एजाज हासिल कर पाए हैं। इनमें से 86 कोहे पैमा केटू के दामन में मौत के मुंह में चले गए हैं जो अभी तक गुमनाम है। केटू में से आखिरी गुमनाम मुहिम जो हमारे कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा है। अतालवी मुहिम जो के बाद 74 से मौसम गर्मा में कोहे पैमा जब पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन में आने लगे तो पोर्टर्स की छोटी सी इंडस्ट्री कायम हुई। ये मकामी लोग होते हैं जो इन गैर मुल्की कोहे पैमाओं का साजो सामान उठाते हैं और उन्हें गाइड करके इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान के चंद मशहूर तरीन पोर्टर्स के बारे में ट्रिब्यून मैगजीन कहता है, पाकिस्तानी पोर्टर्स आर अनसंग मास्टर्स ऑफ टॉप माउंटेन, यानी पाकिस्तानी पोर्टर पहाड़ों के वो हीरो हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है। मैगजीन में एक पुराने पोर्टर फजल अली की बहादुरी का किस्सा लिखा है कि वो वाहिद कोहे पैमा है जो 3 बार केटू सर कर चुका है। जर्मनी के मायानाज माउंटेनियर क्रिस्टाइन फ्लॉडेट कहते हैं, पाकिस्तानी पोर्टर शुड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ यूनियन इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन देयर फाइनेंशियल डिमांड्स। जर्मन मायानाज मुहिम जो का ये कहना हर्फ बहर्फ दुरुस्त है, क्योंकि मोहम्मद अली सतपारा जो आज पूरी कौम के हीरो हैं, इतने गरीब पोर्टर थे कि इनसे एक बार पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अपनी बीवी के लिए एक सिलाई मशीन खरीदनी है। क्या आप जानते हैं केटू सर करने की फीस $7,200 है। मोहम्मद अली सतपारा के पास ये फीस देने के पैसे तो दूर की बात, कोहे पैमाई के मौजूद तरीन जूते तक नहीं थे। वो अक्सर स्कर्दू के लंडे बाजार से कोहे पैमाई का वो सामान खरीदते जो गैर मुल्की कोहे पैमा वहाँ बेच के जाते थे। घर लाकर इनकी मुरम्मत करते और ठीक करके उन्हें इस्तेमाल करने लगते थे। नाजरीन, कोहे पैमाओं के पास एक गेयर नुमा बॉक्स होता है जिसमें जिंदा रहने का जरूरी सामान मौजूद होता है। मोहम्मद अली सतपारा का गेयर बॉक्स इतना खराब था कि अक्सर गैर मुल्की कोहे पैमा इनको अपना सामान उधार पर देते थे। पाकिस्तान के मशहूर तरीन पोर्टर्स में एक आमिर मेहदी भी थे जिनकी कहानी बहुत दर्दनाक है। 1954 में जब गैर मुल्की कोहे पैमा नांगा पर्वत सर कर रहे थे तो वो आमिर मेहदी को भी साथ बतौर पोर्टर ले गए। ताहम इस डर से कि आमिर मेहदी का नाम भी नांगा पर्वत को पहली बार सर करने पर गिनीज बुक में शामिल ना हो जाए, इन गैर मुल्की कोहे पैमाओं ने आमिर मेहदी और एक और जूनियर गैर मुल्की कोहे पैमा को धोखा देकर गलत लोकेशन पर फंसा दिया। वो दोनों रात भर इस लोकेशन पर फंसे रहे। सो बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को इस घाटी से निकाला और नीचे वापस आए, लेकिन तब तक बफर जून बाइट ने आमिर मेहदी के पाँव का काम कर दिया था।
यूं आमिर मेहदी की पाँव की उंगलियां डॉक्टर्स को इनकी जान बचाने के लिए काटना पड़ी थी। साबिर नजीर भी एक पाकिस्तानी पोर्टर थे जिनका एजाज ये है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट सर की थी। व्यूअर्स, अब हम अपनी कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर मोहम्मद अली सतपारा की तरफ मोड़ते हैं। मोहम्मद अली सतपारा बचपन से ही कोहे पैमाई के शौकीन थे। कोहे पैमाई के सबसे बड़े मैगजीन में मोहम्मद अली सतपारा ने अपना एक दिलचस्प इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। मैगजीन में खातून मुसन्फा लिखती हैं कि 26 फरवरी को मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान से, एलेक्स टेक्सिकॉन स्पेन से और साइमन मोरो इटली से जिनका ताल्लुक था, जब इन 3 अफराद ने पहली बार सर्दियों में नांगा पर्वत सर किया तो कोहे पैमाओं की दुनिया में हलचल मच गई थी, क्योंकि इस कातिल पहाड़ पर सिर्फ गर्मियों में ही क्लाइंबिंग की जा सकती थी। आज भी 69 लाशें इस पहाड़ के दामन में बेगौरो कफन पड़ी हुई हैं। खातून मुसन्फा मोहम्मद अली सतपारा की बहादुरी पर हैरान होकर लिखती हैं कि मोहम्मद अली सतपारा बल्तिस्तान के एक छोटे से गांव सतपारा में पैदा हुए। बचपन से ही छोटी छोटी क्लाइंबिंग करते थे। वो बचपन में अपनी बकरियों को बर्फानी ग्लेशियर से गुजार कर देवसाई की सब चरागाह की तरफ ले जाते। मोहम्मद अली सतपारा के गांव से थोड़ा ऊपर एक डैम तामीर था। सतपारा जब 9 बरस के थे तो वो डैम टूट गया, जिससे मोहम्मद अली सतपारा का घर और मवेशी बह गए थे। मोहम्मद अली सतपारा के चचा भी पोर्टर थे। सतपारा ने अपने बचपन का वाकया बताते हुए कहा कि जब वो अपने चचा के साथ बाल्टोरो ग्लेशियर, जो दुनिया का अंटार्कटिका के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसकी एक मुहिम पर थे तो उनकी आंखों का चश्मा गिर गया था। ये चश्मा पहनना इंतहाई जरूरी होता है, नहीं तो चमकीली बर्फ में इंसान अंधा हो जाता है, और अगर ज्यादा देर तक अंधा रहे और मुनासिब इलाज ना हो तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। यूं मोहम्मद अली सतपारा से जब वो चश्मा गिरा तो इनके चचा ने उठाकर उसे छुपा दिया और अपना मिशन जारी रखा। थोड़ी देर बाद जब चमकीली बर्फ ने अपना काम दिखाना शुरू किया तो सतपारा की आंखें सुर्ख होने लगी। यूं समझ लें कि इनकी नजर खत्म होने लगी तो इनके चचा ने फौरन इनको वो चश्मा पहनाया और ये सबक सिखाया कि इन पहाड़ों में छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा हादसा पेश कर देती हैं। ख़वातीनो हज़रात, मोहम्मद अली सतपारा की 19 साल की उम्र में इनकी शादी इनकी एक रिश्तेदार फातिमा से हुई। 1 बरस बाद इनके बड़े फर्जंद साजिद सतपारा पैदा हुए। मोहम्मद अली सतपारा की मुआशी हालत अच्छी नहीं थी तो उन्होंने गैर मुल्की कोहे पैमाओं के साथ बतौर पोर्टर काम करना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ $3 के लिए 25 किलो का सामान उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलते और K2 बेस कैंप तक गैर मुल्की कोहे पैमाओं की रहनुमाई करते थे। इसके साथ साथ गैर मुल्की कोहे पैमाओं की मुहिम से वापसी का इंतजार भी करते थे। किसे मालूम था कि एक दिन 22 करोड़ आवाम मोहम्मद अली सतपारा की इंतजार में होगी। 1991 में आपने कुछ अरसा पाक फौज में भी मुलाजमत की। आपकी जिम्मेदारी सियाचिन ग्लेशियर में रात के वक्त फौजियों को अगले मोर्चों पर खाना और दीगर जरूरी सामान पहुंचाना होता था। उसी जमाने में सतपारा ने दुनिया की ये ऊंची ऊंची चोटियां सर करने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया था। सतपारा ने मैगजीन को ये भी बताया कि सियाचिन की मुसलसल मुहिमजोई के बाद मेरे अंदर पहाड़ों का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं जान चुका था कि अगर आप पहाड़ों में चलते हैं तो आपके सामने जिंदगी और मौत दोनों होती है। ये आपका इंतखाब है कि आप गलती करें और मौत को गले लगा लें या फिर मंजिल हासिल करके कौमी हीरो बन जाएं। मोहम्मद अली सतपारा की बीवी फातिमा, जो सतपारा की मुहिम जोई की आदत को सख्त नापसंद करती थी, वो अक्सर उन्हें कहती कि पहाड़ों पर जान जाया करने से बेहतर है कि अपने खेतों में आलू उगाइए। ताहम सतपारा उन्हें इन अल्फाज के साथ खामोश करवा देते कि मुझे गैर मुल्की कोहे पैमाओं की जरूर मदद करनी चाहिए। इससे न सिर्फ इज्जत मिलती है बल्कि हम पैसे भी कमा सकते हैं। 2005 से लेकर 2015 तक मोहम्मद अली सतपारा ने गैर मुल्की कोहे पैमाओं के साथ बतौर प्रोफेशनल पोर्टर का काम किया। आपने नांगा पर्वत, ग्लेशियर ब्राह्म 1 और 2 को गर्मियों में सर किया। इसके अलावा आप गैर मुल्की कोहे पैमाओं के साथ K2 के 8,350 मीटर
बोटेल नेक पॉइंट तक जाते रहे थे। चोटी से सिर्फ 300 मीटर पहले रुक जाते, रस्सियां कसते, ऊपर जाने वाली टीम को बैकअप करते और वहां से इनके साथ वापस आ जाते थे। मोहम्मद अली सतपारा को रेस्क्यू मैन भी कहा जाता है। आपने 2019 में मशहूर कोहे पेमा टॉम ब्लड की डेथ बॉडी K2 से रेस्क्यू की। इसके अलावा कई नाकाम कोहे पेमाओं के एडवेंचर जब नाकाम हो जाते और वो फंस जाते तो मोहम्मद अली सतपारा ही थे जो उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच जाते थे। यूं दर्जनों जाने सतपारा ने बचाई थी। मोहम्मद अली सतपारा का एक जुनूनी ख्वाब ये भी था कि वो सर्दियों के मौसम में तमाम चोटियों को सर करके न सिर्फ आलमी रिकॉर्ड कायम करें बल्कि वहां सब्ज हिलाली परचम लहरा कर अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। इस मकसद के लिए उन्होंने जनवरी 2015 में अपने खानदान से झूठ बोलकर एक यूरोपीय टीम के साथ नांगा पर्वत सर करने की कोशिश की। ताहम यह मुहिम नाकाम हो गई। मोहम्मद अली सतपारा के बकौल नांगा पर्वत चोटी के सिर्फ 100 मीटर नीचे इनकी यादाश्त चली गई थी। वो रास्ता भटक गए थे। रात 3 बजे से लेकर सुबह सूरज की पहली तपिश तक वो ये भूल गए थे कि वो कहाँ पर हैं और उनके साथ कौन सी टीम आई है। इसके साथ साथ ये भी कि उनकी टीम गुम हो गई है। ताहम सुबह के वक्त उनकी यादाश्त वापस आई और उन्होंने अपनी टीम को सर्च किया। यूं ये पहला मिशन नाकाम हुआ। लेकिन अगले साल 2016 में उन्होंने 2 अंग्रेज कोहे पेमाओं के साथ मौसम सरमा में नांगा पर्वत सर करके अपना ये दरीना ख्वाब मुकम्मल कर दिया था। अब इनकी नजरें K2 के पहाड़ के ऊपर लग गई थी। वो K2 पहाड़ को भी मौसम सरमा में बगैर ऑक्सीजन के फतह करना चाहते थे, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। इनकी मुश्किलात समझने के लिए K2 को समझना होगा। नाजरीन, K2 की लंबाई यूं तो सिर्फ 8611 मीटर है, मगर यहाँ बुनियादी तौर पर 4 ऐसे खतरे हैं जो इसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एडवेंचरस पहाड़ बनाते हैं। इसका पहला खतरा है K2 में अमूदी चढ़ाई है। यहाँ बाकायदा रास्ता नहीं है। हर क्लाइंबर को एक एक कदम का रास्ता बनाना पड़ता है। दूसरा बड़ा खतरा यहाँ का गैर यकीनी मौसम। किसी भी वक्त बर्फबारी शुरू हो सकती है और दर्जा हरारत नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गिर जाता है। तीसरा खतरा यह है कि K2 के करीब 3 लॉजिस्टिक स्पोर्ट दस्तयाब नहीं। कर्दू से सिर्फ बाय एयर वो भी महज 6000 मीटर तक रेस्क्यू किया जा सकता है। जबकि चौथा बड़ा खतरा यहाँ किसी भी वक्त ग्लेशियर फट जाता है। K2 पर बड़े बड़े सानेहात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा हादसा 2008 में पेश आया था। टीम जब कोहे पेमाओं की 11 रुकनी टीम एक ही दिन में वक्फे से गिरकर मरती गई। यूं सारी टीम हलाक होती गई। इसके अलावा यहाँ 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। नाज़रीन, 2018 में मोहम्मद अली सतपारा को एक फ्रांसीसी मुहिम जो ने अपनी टीम का हिस्सा बना दिया। इनकी टीम ने अपने मंसूबे के तहत नांगा पर्वत को 2019 में सर किया और इस साल 2021 में उन्हें K2 को मौसम सरमा में सर करना था। ये सफर यहीं नहीं रुकना था, उन्हें 2022 में माउंट एवरेस्ट की चोटी भी मौसम सरमा में सर करके अपना आलमी रिकॉर्ड कायम करना था। ताहम मोहम्मद अली सतपारा का सफर K2 इनका आखिरी सफर साबित हुआ। सतपारा इंतहाई गरीब इंसान थे, मगर कभी उन्होंने अपनी मुआशी परेशानियों को अपने ऊपर हायल नहीं होने दिया। 2021 जनवरी में मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम अपने दूसरे मिशन के लिए K2 बेस कैंप पहुंच चुकी थी। 5 फरवरी 2021 को मोहम्मद अली सतपारा और उनकी 2 रुकनी टीम ने दिन के 12 बजे K2 बेस कैंप छोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। इनको बेस कैंप से K2 के टॉप तक पहुंचने के लिए 14 घंटे का तवील, खतरनाक और मौत से लबरेज सफर दरकार था। ताहम बोटल नेक जो के K2 के सफर के दौरान 8000 मीटर पर आता है, एक खतरनाक पहाड़ी पॉइंट है। वहाँ पथरीली जमीन और गहरी खाई है। वहाँ से गुजरते हुए इनका बेस कैंप से राब्ता टूट गया। 6 फरवरी को सतपारा के ऑफिशियल टीम मैनेजर ने सोशल मीडिया पर यह इतलात दी कि सतपारा और उनके साथी गुम हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान फौज की पाक फजाइया के 5th स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखने वाले हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए फौरन रवाना किए गए, जिन्होंने 6000 मीटर तक परवाज की। ताहम उन्हें सतपारा और उनकी टीम के कोई आसार नजर नहीं आए।
8 फरवरी तक सतपारा कौमी हीरो बन चुके थे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ट्वीट करके उन्हें पहाड़ का बहादुर आदमी करार दिया था। आर्मी चीफ ने फौज को हिदायत दी कि रेस्क्यू मिशन में किसी किस्म की कमी न रखी जाए, लेकिन 8 फरवरी तक तीनों कोहे पैमाओं को मिसिंग पर्सन्स डिक्लेयर कर दिया गया और अब तक इनकी तमाम जिंदा रहने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। अब तक 3 लैंड टीमें और कई हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन डेड बॉडी का कहीं भी सुराग नहीं मिल सका है। आखिर सतपारा के साथ कौन सा हादसा पेश आया होगा? कोहे पैमा साजिद सतपारा, जो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे और मुहिम जू भी हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक सतपारा और उनकी टीम शायद चोटी सर कर चुके थे। जब वो वापस पहुंचे तो डेथ जोन, जो 8000 मीटर की रेंज से शुरू होता है, वहां 8202 मीटर पर बोटल लेक की खतरनाक लोकेशन मौजूद है, जहां मुहिमजों को संभल कर उतरना पड़ता है। वहां इनको कोई हादसा पेश आया है और वो गुम हो गए हैं। बोटल लेक का नाम भी खतरनाक है क्योंकि वहां एक गहरी खाई इस तरह की है जैसे बोतल के नीचे का हिस्सा बहुत खुला है और ऊपर ढक्कन बहुत तंग होता है। साजिद के बकौल रात का वक्त था। इसी लोकेशन के आसपास उनके वालिद को ये हादसा पेश आया होगा। यूं पाकिस्तान एक अजीम तरीन कोहे पैमा से महरूम हो गया है। यहाँ आपको मैं ये भी बात बताता चलूं कि जो पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें जदीद टेक्नोलॉजी से लैस C-130 तैयारे का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ सैटेलाइट की मदद से भी तस्वीरें लेकर जमीनी और फिजाई ऑपरेशन जारी रखे गए, लेकिन मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों का ताहाल कुछ ना पता चला। नाज़रीन, अब अगर आपके जहन में ये सवाल उभर रहा है कि सालाना कितने मुहिम जो दुनिया के 2 बुलंद तरीन पहाड़ों पर आते हैं, इनमें से कितने कामयाब और कितनों की अमवात वाक़ई होती है, तो इनकी एदादो शुमार कुछ यूं है। माउंट एवरेस्ट पर सालाना 700 एडवेंचर होते हैं और पाकिस्तान में सालाना 200 के करीब एडवेंचर्स होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर शरह अमवात 6.9% है, जबकि K2 की शरह अमवात 29% है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट पर 100 में से 6 लोग मरते हैं तो K2 पर 100 में से 29 मुहिमजू हलाक हो जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर कामयाबी की शरह 40% है, जबकि K2 पर कामयाबी की शरह सिर्फ 10% है। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 286 अमवात वाक़ई हो चुकी हैं, जबकि K2 पर 77 अमवात वाक़ई हुई हैं। ख़वातीनो हज़रात, मोहम्मद अली सतपारा बेशक K2 सर ना कर सके, मगर आज हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है कि इनके हीरो सतपारा बहादुर इंसान थे, जिन्होंने आखिरी सांसों तक मौत का मुकाबला किया होगा। वो खुद कहते थे, मैं कभी पहाड़ में गुम हो जाऊं तो उदास मत होना, मैं वहां बर्फ का अपना घर बना लूंगा। माहिरीन की थ्योरी कहती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय रीजन पर 2050 में काफी हद बर्फ पिघल चुकी होगी। शायद हमें तब मोहम्मद अली सतपारा का 2 गज का घर नजर आ जाए और हम इनको आखिरी सलाम पेश कर सके। पारा जैसे अजीम शख्स के लिए शायर ने कहा था, फिर पहाड़ों से उतर कर आएंगे, राह भटके नौजवान घर आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके साथ साथ आपसे इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए, ताकि मजीद मजेदार वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।